بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں، کچھ اسلام آباد سے اور کچھ راول پنڈی سے۔ خبریں ذرا تھوڑی سی سنجیدہ نوعیت کی ہیں، غور سے سنیے گا، کیونکہ اس وقت جو لڑائی ہے وہ آخری راؤنڈ میں شامل ہوئی ہے، اور آخری راؤنڈ اس سینس میں کہ جیسے جیسے 29 نومبر قریب آ رہا ہے، لڑائی میں بھی شدت آ رہی ہے اور مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ اور ڈاکٹر شہباز گل نمبر 1 ٹارگٹ کون ہے؟ اصل ہدف ہے عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان، یہ ہے اصل ہدف۔ اور اس ہدف کو گرانے کے لیے، اس ہدف کو اچیو کرنے کے لیے کون کون سے سیڑھیاں استعمال ہو سکتی ہیں، کون کون سے کندھے استعمال ہو سکتے ہیں، یہ سارا چیزیں جو ہیں اس وقت ٹیبل پر ہیں۔ اور اس وقت فی الوقت جو چیز دستیاب ہے، میسر ہے، وہ ہیں ڈاکٹر شہباز گل۔ ڈاکٹر شہباز گل ان کے آگے انہوں نے ایک لوز جملہ بولا، لوز جملہ کہوں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ اس سے بڑی بڑی باتیں ہو چکی ہیں، اور اس سے بڑی بڑی باتیں، اس سے زیادہ خطرناک باتیں، اس سے زیادہ خوفناک باتیں، گالم گلوچ تک ملٹری لیڈرشپ کو ہو چکی، دھمکیاں دی جا چکی، فوج کو تقسیم کرنے کی بات ہو چکی، روگ آرمی کے اشتہار شائع ہو چکے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوا، ہمارا اسٹیبلشمنٹ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ بار بار وہ اقتدار میں بھی آئے، اور ان کو اقتدار میں ایڈجسٹ بھی کیا گیا، اکوموڈیٹ بھی کیا گیا، ان کو پالا بھی گیا، سب کچھ کیا گیا۔ یہ تاریخ ہے، اس میں کوئی ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، کیونکہ یہ پہلی جماعت ہے، بلکہ کہوں گا پہلا خاندان ہے کہ بیرون ملک شائع ہوئے اخبارات روگ آرمی کے، پاکستان فوج کے بارے میں شائع کیے گئے، اور پتہ بھی چل گیا، لیکن اس کے باوجود کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب اتنی اگر آپ اتنی ان کو کھلی چھٹی دیں گے تو پھر وہ جو چاہیں کریں۔ اور پھر وہی ہوا کہ سٹنگ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا، نواز شریف صاحب نے، مریم صاحبہ نے، کیپٹن صفدر صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے، خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو کچھ بولا وہ سارا ریکارڈ پہ ہے۔ پھر جاوید لطیف صاحب، خرم دستگیر صاحب نے اتنی بڑی کانسپریسی کو ڈسکلوز کیا، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے، لیکن اس پہ کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں آئی، کوئی کچھ نہیں آئی۔ زرداری صاحب نے بہت کچھ کہا، تو اس پہ بھی ترجمان پاک فوج کی طرف سے ہلکے پھلکے ایک دو جملے آئے کہ جی اس طرح نہ کیا کریں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ بات ہوئی۔ اب ڈاکٹر شہباز گل، ان کا معاملہ ڈاکٹر شہباز گل کے ایک جملے سے کیا کتنے جو ہیں شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلا ہدف ہے عمران خان صاحب، اور دوسرا ہدف ہے اے آر وائی، کیونکہ عمران خان کے ساتھ اے آر وائی کو کر دیا گیا ہے، اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ تو شہباز گل صاحب، کل عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر نے انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ شہباز گل کو ننگا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد بحث شروع ہو گئی کہ وہ تو اڈیالہ جیل میں تھے، اڈیالہ جیل تو پنجاب گورنمنٹ کی تھی، تو یہ کیسے ہوا؟ تو اس کی پوری خبر یہ ہے کہ جب ڈاکٹر شہباز گل کو گاڑی کے شیشے توڑ کے اٹھایا گیا، اس کے بعد وہ پولیس کی تحویل میں رہے ہیں، ایف آئی اے کی تحویل میں رہے ہیں تقریباً 72 گھنٹے۔ 72 گھنٹوں کے دوران، اور اس کے بعد یہ خبر بھی آئی تھی کہ جناب چیزیں جو ہیں ان کے کپڑوں پہ نشان ہیں، اور ان کا میڈیکل، یہ سب کچھ آیا تھا، یہ ساری چیزیں اس وقت آ چکی تھیں۔ بہرحال اس کے بعد ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا تھا۔ تو جیل میں ایسا کچھ نہیں ہوا، اس سے پہلے ہوا۔ ایک چیز، دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا، تو کیا وجہ ہے کہ دوبارہ ان کا فزیکل ریمانڈ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جو ایکچوئل بات ہے کہ فزیکل ریمانڈ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ، پہلے سیشن جج، اور اس کے بعد اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ریویو کے لیے بھیج دیا سیشن جج صاحب کے پاس، زیبا چودھری ہیں وہ سن رہی ہیں، ان کے پاس بھیج دیا کہ اس کو ریویو کر لیں اور نظر ثانی کر لیں، یعنی معاملہ جائے گا ادھر ہی، سیشن جج صاحب سنیں گے کہ ان کو ریمانڈ چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اب یہ جو لڑائی چل رہی ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر شہباز گل، اس میں
कल खान साहब ने भी बताया और कुछ और भी। अब आहिस्ता आहिस्ता असल में पीटीआई वालों को देर से समझ आती हैं चीज़ें, और अब चीज़ें समझ आ रही हैं उनको कि उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की जा रही है कि वो किसी भी तरीके से ऐसा स्टेटमेंट दे दें कि जिससे साबित हो कि ये इमरान खान साहब के कहने पे किया गया था सब कुछ, और इमरान खान साहब के कहने पे, उनकी हिदायत पे, बल्कि वो जो एक कॉन्स्पिरेसी बनाई गई है कि जनाब बाकायदा तौर पे एक तय हुआ सारा कुछ, और उसके बाद ये स्क्रिप्टेड था, स्क्रिप्ट हासिल करना है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन ज़ाहिर 72 घंटे उनके पास रहे हैं। बहरहाल अब जो चीज़ें आ रही हैं, अब फैसल चौधरी साहब ने भी बात कर दी है, और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को समझते हैं, फौजदारी कानून को, अब ये मामला बिल्कुल जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की तरफ जा रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को भी पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में ये वाहिद केस है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को एक ऐसे केस में फांसी दी गई कि जिसकी दुनिया भर में ना उससे पहले ना उसके बाद कोई नज़ीर मिलती है। उनको भी यही कहा गया था कि अहमद रज़ा कसूरी साहब के वालिद जो हैं उनका मर्डर हुआ था, और वो जब कत्ल हुए तो उसके बाद FIR दी गई कि जनाब ये उनके प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ये सब कुछ हुआ है। वो उसको कहते हैं 109 दफ़ा 109 मुशावरत के ज़मीने में आता है। तो मुशावरत में जो सज़ा होती है वो कभी भी मेजर पेनल्टी कभी भी नहीं हुई, यानी कि सज़ाए मौत कभी नहीं हुई अगर उसके नतीजे में कत्ल हो जाता है। तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी माफ़ी मांगी, जजेस बाकी जो उस जजमेंट में इन्वॉल्व थे उन सब ने माफ़ी भी मांगी, और मरने से पहले माफ़ी मांगी। तो ये बातें सारी मौजूद हैं। उसमें भी वादा माफ गवाह बनाया गया था। अब डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में जो पीटीआई को अब खतरा आया है कि उनको गिरफ्तार कर, उनका जुडिशल रिमांड ख़त्म करवा के फिजिकल रिमांड में ला के उनसे कोशिश की जाएगी एक स्टेटमेंट ले लें, और स्टेटमेंट ये कि ये सारा कुछ मैंने इमरान खान साहब के कहने पे किया है, और इस तरीके से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के लिए और इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा कायम करने के लिए, और एक बगावत और सेडिशन जो जिसको कहते हैं वो, क्योंकि आजकल फैक्ट्री लगी हुई है, उस पे हम इमरान खान साहब को फारिग कर देंगे और उसके बाद फिर सारे मसले हल हो जाएंगे। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने क्या किया था, मुस्लिम दुनिया के आलमी रहनुमाओं का एक पूरे का पूरा बैच था। लाहौर में हुई थी जी, इस्लामिक समिट हुई थी, और इस्लामी ममालिक की सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी OIC की। तो उसमें बड़े नामवर मुस्लिम रहनुमा थे। किंग फैसल थे सऊदी अरब के, उनको कत्ल कर दिया गया था, उनके भतीजे के ज़रिए उनको कत्ल करवाया गया था, और वो बैरून मुल्क से तालीम हासिल करके आए थे अमेरिका से, और उनको कत्ल कर दिया गया था। इसी तरीके से उसमें कर्नल गद्दाफ़ी थे, उनका भी आपने देख लिया, और मिस्र के थे अनवर सादात, वो भी मर्डर हुआ था। तो उसमें जितने भी लोग थे उस वक्त भी, जितने भी आलिम रहनुमा थे, वो गैर तबई मौत मरे थे, और भुट्टो साहब को फांसी हुई थी। तो ये मुमासलत जो है अब PTI वाले ख़तरा महसूस कर रहे हैं कि ये डॉक्टर शहबाज गिल का मामला जो है वो इतना क्यों उसको फोकस किया जा रहा है। और उससे पहले मैंने आपको बताया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफ ज़रदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, जावेद लतीफ़ साहब, और ना जाने कितने, मरियम बीबी साहिबा, पता नहीं क्या कुछ हुआ, तो कोई कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो लिहाजा ये चीज़ है। तो अब थोड़ा सा महसूस किया जा रहा है जनाब कि मामला ज़रा थोड़ा सा लंबी गेम हो रही है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो एक चीज़, दूसरी बात, अब इसके साथ ही मामला जुड़ा हुआ है ARY का। अब ये सारा इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उन्हीं को, अब उसमें इमरान रियाज खान को दोबारा ऑफ एयर कर दिया गया, और अरशद शरीफ साहब बैरून मुल्क, मैं बैरून मुल्क, वो तो, और उसके बाद ARY जो था उसको वैसे ही उसको फना कर दिया गया, यानी कि अल्लाह माफ़ करे, कोशिश की जा रही है, फना नहीं होगा तो उसको फना करने की कोशिश की जा रही है, वो बंद है। सिंध हाई कोर्ट कह रही है बहाल करें, खोल लें, लेकिन नहीं खुल रहा। अब कल रात भी गुजर गई 11:59 तक, रात 11:59 तक, रात 12 बजे कह लें,
12 बजे तक इम्प्लीमेंट करवाना था। अब आज एक पहुंच गई दरखास्त, क्या दरखास्त पहुंची कि जी वो ऑर्डर सस्पेंड करें आप। तो सिंध हाई कोर्ट में पैमरा गया तो वो ऑर्डर सस्पेंड नहीं हुआ और 24 अगस्त तारीख मुकर्रर की गई है और हुक्म है कि ARY की नशरियात फौरी तौर पर बहाल की जाएं, उनको दिखाया जाए। बल्कि जस्टिस अब्बासी साहब ने यह भी कहा आज कि जब तक ARY आपको के लिए अच्छा बोलता था तो उस वक्त तो बहुत अच्छा था जब आपकी फेवर में बोलता था, अब आपको पसंद नहीं है और अब ARY पे आपको मसला बन गया। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर कोई मसला था तो एक प्रोग्राम बंद किया जा सकता था। जिस प्रोग्राम में ये बात हुई तो पूरा टीवी चैनल आप कैसे बंद कर सकते हैं एक छोटे, क्योंकि ये मौजूद है कि जिस प्रोग्राम में कोई मसला हो तो उस एंकर को आप सजा दे सकते हैं, उस प्रोग्राम को ऑफ एयर कर सकते हैं। ये हमारे साथ भी हुआ था, ये डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के साथ भी हुआ था कि ऑफ एयर कर दिया गया और अदालतों ने फिर बहाल कर दिया था। अदलिया ही बहाल करती है, अदलिया के पास ही जाना पड़ता है, वहीं से रिलीफ मिलता है। तो पैमरा जो है वो उस ऑर्डर को सस्पेंड करवाने आया था बजाय इसके कि इम्प्लीमेंट करे, और जहाँ पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी शुरू हो सकती हैं अगर ये ना हुआ, और केबल ऑपरेटर्स को अब आगे किया जा रहा था। तो ARY के साथ भी वही सलूक किया जा रहा है, डॉक्टर शहबाज गिल के साथ भी वही सलूक किया जा रहा है। अम्माद यूसुफ साहब को उठाया गया, शहबाज गिल साहब को उठाया गया। मुझे नहीं मालूम कि ये क्या, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये कौन सी इंसानियत है कि आप लोगों को बेलिबास करते हैं। ये मुझे समझ नहीं आई कि कौन सी क्या, यानी ऐसे लोगों को ये जो कल तक आपके साथ थे, कल तक आपको बहुत अच्छा, आप उनको बहुत अच्छा समझते थे और उसके बाद उन्हीं को आप बेलिबास कर रहे हैं। इस पे सोचना चाहिए कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या इस तरीके से कोई कौमी सलामती की खिदमत हो रही है, कोई कौमी मफाद की खिदमत हो रही है, कोई पाकिस्तान की खिदमत हो रही है? क्या कौमी मफाद है? दिल पे हाथ रख कहें, कुरान मजीद पे हाथ रख के ये ज़रा सोचें कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आईने पाकिस्तान के हाथ रख के ज़रा सोचें अंडर ओथ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इस तरफ हम चल पड़े हैं कि लोगों को पकड़ते हैं, उनको बेलिबास करते हैं और उसके बाद तस्कीन हासिल करते हैं। ज़रा सोचना चाहिए। उसकी वजह यह है कि गुज़र जाता है, मुश्किल वक्त गुज़र जाता है और अफराद आते हैं चले जाते हैं, इदारे बरकरार रहते हैं, और अफराद के फ़ैसले हैं, जो इंडिविजुअल्स के फ़ैसले हैं, जो इंडिविजुअल्स के गलत कारियाँ हैं, उनकी सज़ा इदारों को भुगतना पड़ती है और आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ती है। वो मुल्क हों, वो इदारे हों, आने वाले भुगतेंगे। ये जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये उनके लिए कांटे और बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही हैं, बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही हैं, और उन लोगों को आप लोग रुस्वा कर रहे हैं जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, जो पाकिस्तान के इदारों का एहतराम करते हैं, जो आईने पाकिस्तान का एहतराम करते हैं, जो लिफाफे नहीं लेते, जो बिकते नहीं हैं, जो रिश्वत नहीं लेते, जो परमट नहीं लेते, जो प्लॉट नहीं लेते, जो पैसे नहीं लेते। तो उन लोगों को आप रुस्वा कर रहे हैं, उन लोगों को आप बेलिबास कर रहे हैं और बेलिबास करके वीडियोस बनाई जा रही हैं। इस पे ज़रा सोचिएगा ज़रूर कि एक इंडिविजुअल, एक ज़िद, एक अना, एक बुग़्ज़, एक इंतकाम, एक तकब्बुर, एक रऊनत, एक फ़िरौनियत, इन सब को पूरा करने के लिए आप ये क्या कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।